علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں ایک رات حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا۔ عبد المطلب طیبہ کو کھودو۔ یہاں تو واقعی کوا بیٹھا ہے۔ عبد المطلب رک جاؤ، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ کیا تم ہمارے ان بھوتوں کے پاس گڑھے کھودنا چاہتے ہو؟ میں شیبہ ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، بطحا کا سردار ہوں۔ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ ان خاندانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ رہنے دیتے، یہاں تک کہ وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ عرب معاشرہ کن کن بتوں کی عبادت کرتا تھا اور وہ اپنی پوجا کس انداز سے انجام دیتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دیا گیا تھا کہ بتوں کے علاوہ ایک اور بااثر کردار موجود تھا، جس پر آج کی قسط میں ہم مختصراً بیان کر کے سیریز کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ محمد الرسول اللہ سیریز کے پہلے سیزن اور پہلے سیزن کے چوتھے ایپیسوڈ پر موجود ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بت پرستی کے بعد جس شخصیت کو خاص اہمیت حاصل تھی وہ کاہن تھے، جو غیب جاننے اور پوشیدہ باتوں کی خبر دینے کا دعویٰ کرتے تھے۔ کچھ کاہن مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے تھے، جنہیں آراف کہا جاتا تھا، اور ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ کچھ لوگ آئینے یا چاندی کے برتن میں پانی ڈال کر غیب دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ کچھ جانور ذبح کر کے ان کے اعضاء کو دیکھ کر مستقبل کے فیصلے سناتے تھے۔ اس وقت عرب معاشرے میں کاہن اور عراف کو غیر معمولی درجہ حاصل تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی دنیا سے بھی ہے۔ وہ دور انتہا درجے کی توہم پرستی کا دور تھا۔ معاشرے میں اس طرح کی بہت سی عجیب باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک اور نہایت دردناک چیز بھی انتہا درجے پر موجود تھی، اور وہ تھا بچیوں کے قتل کا رواج۔ تم نے ایک نحوست کو پیدا کرا ہے۔ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ عرب میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کا رواج عام تھا۔ یہ رسم انتہائی تکلیف دہ اور دل دہلا دینے والی تھی۔ کچھ خاندان اس بے حسی میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ ان خاندانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ رہنے دیتے، یہاں تک کہ وہ بچی 5 یا 6 سال کی ہو جاتی۔ پھر وہ اسے اچھی طرح سے تیار کرتے اور اس کے باپ کے ساتھ اسے صحرا میں لے جایا جاتا۔ وہاں جا کر باپ ایک گڑھا کھودتا، بچی کو اس کے کنارے کھڑا کر دیتا اور پھر پیچھے سے اسے دھکا دے دیتا۔ وہ بیچاری معصوم بچی گڑھے میں گر پڑتی، روتی، چیختی، فریاد کرتی، اور باپ آنکھیں بند کر کے پتھر دل بند کر پیچھے سے ریت یا مٹی ڈالنا شروع کر دیتا۔ بنو تمیم کا ایک شخص قیس بن عاصم تھا، جس نے اپنی 10 بیٹیوں کو اسی طرح زندہ دفن کیا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے ابو بکر، سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ تکویر ایک بار پڑھ کر دیکھیے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ سورہ تکویر کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی، وہ تمام کی تمام بچیاں اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گی۔ اللہ آج ان سے پوچھے گا
किस जुर्म की वजह से हमें मारा गया था। अंदाजा करें कि अरब मुआशरा नबी करीम की आमद से पहले किस कदर खतरनाक हालत में था, और ये भी देखें कि नबी करीम ने सिर्फ 20 से 25 साल के मुख्तसर अरसे में अरब को किस तरह बदल कर रख दिया। अब हम यहां से नबी करीम के खानदान के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कि वो खानदान कैसा था जिसमें आपकी पैदाइश हुई। जिस घराने में नबी करीम की विलादत हुई, उस खानदान के सबसे बड़े सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। दरहकीकत उनका पूरा बचपन ही बहुत हैरत अंगेज है। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शेबा था और उनकी पैदाइश मदीना में हुई थी, जबकि उनके वालिद हाशिम का ताल्लुक मक्का से था। लेकिन मक्का में कुरैश के खानदान को यह मालूम नहीं था कि उनका एक बच्चा मदीना में मुकीम है। कुरैश को यह कैसे मालूम हुआ कि उनका एक बच्चा मदीना में मौजूद है? ये बातें हम पिछली किस्तों में बयान कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी मजीद तफसील आपके सामने दोबारा बयान की जा रही है। एक दिन तहामा का एक आदमी मदीना से गुजर रहा था। उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और वो बच्चे एक मखसूस निशाने पर तीर चला रहे थे। जो बच्चा निशाने पर तीर लगाता वो फख्र से अपना नाम बताता और कहता, मैं फला फला का बेटा हूँ। देखा तुम सबने? मैंने निशाना लगा लिया, मैं शेबा हूँ, हाशिम का बेटा। ये मंजर देखकर वो आदमी रुक गया और उन बच्चों को खेलते हुए देखता रहा। जब 7 या 8 साल के शेबा की बारी आई तो उसने बहुत अच्छा निशाना लगाया और बुलंद आवाज में कहा, मैं शेबा हूं, हाशिम का बेटा हूं और बतहा के सरदार का बेटा हूं। बतहा से मुराद मक्का का पूरा इलाका था। ये सुनकर वो शख्स अचानक चूक गया और शेबा से पूछा, तुम किसके बेटे हो? तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? हमने दूसरे एपिसोड में बताया था कि हाशिम के भाई कैसे अपने भाई के बेटे शेबा को मक्का वापस लेकर आए। वो बहुत बड़े लीडर बन गए और उन्हें 5 ऐसे ओहदे दिए गए जो किसी और के पास नहीं थे। सीरतुन नबी के हकीकी वाकयात अब्दुल मुत्तलिब से शुरू होते हैं। हमने पिछली किस्त में बताया था कि जुड़हम कबीले ने कैसे जमजम के कुएं को छुपा दिया था। अली रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, मैं एक रात हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे तैयबा को खोदने का हुक्म दिया। मैंने पूछा, तैयबा क्या है? लेकिन वो शख्स मुझे कुछ बताए बगैर वापस चला गया। अब्दुल मुत्तलिब तैयबा को खोदो। अगली रात मैंने ख्वाब में इसी शख्स को दोबारा देखा जिसने एक बार फिर मुझे वही हुक्म दिया, लेकिन इस मर्तबा कहा कि बर्रा को खोद दो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? बर्रा को खोदो। बर्रा क्या है? लेकिन इस बार भी वो कोई जवाब दिए बगैर वापस लौट गया। तीसरी रात वो दोबारा मेरे ख्वाब में आया और मुझे हुक्म दिया कि मदनूना का कुआं खोदो। मैंने उससे फिर पूछा, मदनूना क्या है? लेकिन इस मर्तबा भी वो जवाब दिए बगैर वापस लौट गया। चौथी रात वो एक बार फिर मेरे ख्वाब में आया और मुझे जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया। मैंने पूछा, जमजम क्या है? और इस बार उसने जवाब दिया, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, वो पानी जो लोगों के बहुत बड़े मजमा को सैराब करता है। मैंने पूछा, वो जमजम कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, वो उस जगह है जहां गंदगी और खून पड़ा है, आसाफ और नाइला के बुतों के दरमियान, जहां चोंच मारने वाले परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। कल जब तुम वहां जाओगे तो एक कौवा वहां जमीन पर चोंच मार रहा होगा। अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को साथ लेकर उस जगह पहुंचे जहां आसाफ और नाइला के बुत खड़े थे। यहाँ तो वाकई कौवा बैठा है। और उस जगह की हालत ऐसी थी कि हकीकत में वहां खून और गंदगी मौजूद थी, क्योंकि लोग इन दोनों बुतों के पास कुर्बानियां देते और नजरें चढ़ाते थे। और हकीकत में एक कौवा वहां बैठा जमीन पर चोंच मार रहा था। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कौवा समेत ये तमाम निशानियां देख लीं तो
तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद कुरैश के लोग भी वहां पहुंच गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। क्या तुम हमारे इन बुतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? क्या तुम हमारे इन बुतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी एक न सुनी और खुदाई जारी रखी। मैं नहीं रुकूंगा, खुदाई जारी रहेगी। और बहुत जल्द वाकई वह जमजम के कुएं के आसार जाहिर हो गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की कसम ये इस्माइल का जमजम है। अब जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब को वाकई इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं यानी जमजम का पानी मिल गया है, तो उन्होंने एक और मसला खड़ा कर दिया और कहा कि ये हमारे मुश्तरका आबाओ अजदाद का कुआं था, हम तुम्हें इसे अकेले इस्तेमाल करने नहीं देंगे, इस पर हमारा भी हक होगा। ये झगड़ा काफी दिनों तक जारी रहा, यहां तक कि अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के दरमियान ये तय पाया कि हम शाम के बुलंद पहाड़ों में एक काहना औरत के पास जाएंगे और वो हमारे झगड़े का फैसला करेगी। चंद ही दिनों में ये दोनों फरीक शाम के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में उन लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। मिसाल के तौर पर एक जगह ऐसा हुआ कि उन लोगों के पास पानी खत्म हो गया और कई दिन तक उन्हें पानी न मिला, यहां तक कि उन्होंने महसूस किया कि अब मौत करीब है। लेकिन अचानक इसी लम्हे अब्दुल मुत्तलिब का ऊंट अपनी जगह से तेजी के साथ खड़ा हो गया। ये क्या ऊंट अचानक क्यों उठ गया? अल्लाह, यहां से पानी निकल रहा है। और उन लोगों ने देखा कि जिस जगह ऊंट बैठा हुआ था वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। डरते डरते उन लोगों ने वहां से पानी पिया। और हैरत के साथ अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और निशानियां भी देखी, जिन्हें देखकर कुरैश ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, हम ये देख रहे हैं कि जमजम का फैसला भी आप ही के हक में होगा। अब्दुल मुत्तलिब, फैसला आपके हक में होगा, इसलिए हम अपने हथियार डाल देते हैं। आप जमजम के कुएं के साथ जो चाहें कर सकते हैं। वो लोग काहिना औरत से मिले बगैर वापस लौट आए। और उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा जमजम के कुएं की खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें वहां से सोना, चांदी और जिर्रा मिली, जो बनु जुरहम के हाथों वहां दफन की गई थीं। अब इस खजाने को देखकर कुरैश एक बार फिर अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ने लगे। ये हमारा है, इस पर हमारा भी हक है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी और कहा, या अल्लाह उसको आसान कर दे, अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। यकीनन कुरैश एक मर्तबा फिर अब्दुल मुत्तलिब के सामने से हट गए। मुझे लगता है हमें पीछे हट जाना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब को जमजम के कुएं से जो चीजें मिली वो ये थीं: सोना, चांदी, तलवारें और जिर्रहें। इनमें सोने के 2 हिरन भी थे। इन तलवारों को पिघलाकर अब्दुल मुत्तलिब ने पहली बार खाना काबा का धाती दरवाजा तैयार करवाया। उन्होंने इन 2 हिरनों को इसी दरवाजे में नस्ब किया। और बाकी चीजों से जो रकम हासिल हुई, इससे हाजियों की मेहमान नवाजी का इंतजाम किया। अब जब जमजम की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया तो अब्दुल मुत्तलिब को एक बार फिर ख्वाब आया कि ए अब्दुल मुत्तलिब,
अब अपनी नजर पूरी करो। यानी अपने एक बेटे को कुर्बान कर दो। जब अब्दुल मुतलिब ने यह ख्वाब देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। फिदिये के तौर पर अब्दुल मुतलिब ने एक भीड़ की कुर्बानी दी और ये सोचा कि शायद अब यह ख्वाब दोबारा ना आए, मगर ख्वाब फिर आ गया और उस दूसरे ख्वाब के बाद अब्दुल मुतलिब ने एक बैल ज़िबा किया। अगली रात तीसरे बार फिर ख्वाब आ गया। अब्दुल मुतलिब ने अपने तमाम 10 बेटों को इकट्ठा किया। अब मुझे अपना एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ये सुनकर तमाम बेटों ने अपने सर झुका लिए, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहता। इसके बाद ये फैसला हुआ कि तमाम बेटों के नाम निकाले जाएंगे, यानी उन सब के नाम पर्चियों पर लिखे जाएंगे और फिर जिसका नाम कुरान में निकल आएगा वही कुर्बान किया जाएगा। कुरा अंदाजी अब्दुल मुतलिब के सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे अब्दुल्ला के नाम पर निकली। वही अब्दुल्ला जिनके फर्जंद नबी करीम थे। अब्दुल्ला का नाम निकलते ही अब्दुल मुतलिब बहुत रोए, क्योंकि वो उनका सबसे प्यारा बेटा और सबसे छोटा बच्चा था। लेकिन जब उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया तो अचानक उनका दूसरा बेटा अब्बास अपने आप पर काबू न रख सका। वो दौड़ कर आया और अपने छोटे भाई अब्दुल्ला पर जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। छोटे भाई को उसके वालिद के हाथों से छुड़ाया गया और उस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खराशें आ गईं। तारीख में ये बात लिखी गई है कि वो खराशें सारी उम्र उनके चेहरे पर नुमायां रहीं। बाप बेटे की उस खींचातानी के दौरान कुरैश के बाकी लोग भी आ गए और अब्दुल मुतलिब से झगड़ने लगे कि ए अब्दुल मुतलिब, क्या आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल खतरे में पड़ जाए? हमें अपने बेटों की जरूरत है। हम अपनी नस्ल को खतरे में नहीं डाल सकते। यह है एक खतरनाक रिवाज बन सकता है। उसके बाद उन लोगों के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया कि अब्दुल मुतलिब को अब्दुल्ला के बदले फिदिये के तौर पर 100 ऊँट कुर्बान करने होंगे। अब्दुल मुतलिब ने 100 ऊँटों का इंतजाम किया और उन ऊँटों को काबा के करीब कुर्बान किया गया। पूरे मक्का और उसके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को दावत दी गई। तारीख में लिखा है कि इंसानों, जानवरों और परिंदों समेत तमाम जानदार उन ऊँटों का गोश्त खाते रहे। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, मैं 2 कुर्बानियों की औलाद हूँ, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और दूसरी अब्दुल मुतलिब के बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी। अब्दुल मुतलिब जल्द अज जल्द अब्दुल्ला की शादी करना चाहते थे और वो अब्दुल्ला के लिए दुल्हन तलाश करने लगे। इसी दौरान अब्दुल्ला एक जगह से गुजर रहे थे कि वहां एक दूसरे कबीले की औरत बैठी हुई थी। उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा, गौर से देखा और उनके चेहरे की रोशनी और चमक को बड़ी शिद्दत से महसूस किया और कहा, ए अब्दुल्ला, अगर तुम इसी वक्त मुझसे शादी कर लो तो मैं आज ही तुम्हें वो 100 ऊँट वापस कर दूंगी जो तुम्हारे फिदिये के तौर पर कुर्बान किए गए थे। इतना बड़ा बयान देने वाली औरत का स्टेटस जाहिर है बहुत बड़ा होगा। उस औरत का नाम उम्मे तिताल था और वो वर्का बिन नौफल की बहन थी। एक मर्तबा अब्दुल मुतलिब किसी काम के सिलसिले में यमन गए तो रास्ते में एक यहूदी से मुलाकात हुई जो अब्दुल मुतलिब को गौर से देख रहा था। उसने पूछा, तुम अरब के किस खानदान से हो? अब्दुल मुतलिब ने कहा, मैं कुरैश से हूं। फिर यहूदी ने पूछा, कुरैश का कौन सा कबीला है? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, मैं बनु हाशिम से हूं। उसने पूछा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा हाथ देख लूं? जी हाँ, जरूर। अब्दुल मुतलिब ने इजाजत दे दी। यहूदी काफी देर तक अब्दुल मुतलिब के दाएं हाथ को देखता रहा, फिर दूसरे हाथ को भी गौर से देखा और कहने लगा, अब्दुल मुतलिब, मैं इस बात की गवाही देने को तैयार हूं कि मुझे तुम्हारे एक हाथ में क़यादत के आसार और दूसरे हाथ में नबूवत के आसार नजर आ रहे हैं। ये खुसूसियात तो बनु ज़ोहरा की थीं, तुम्हारे हाथ में ये कैसे आ गईं? अब्दुल मुतलिब ने कहा, मुझे इसका इल्म नहीं, और तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? यहूदी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास शागा है? अब्दुल मुतलिब ने पूछा, शागा क्या चीज़ होती है? यहूदी ने कहा,
मेरा मतलब है क्या तुम्हारी ज़ौजा है? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब सुनकर उस यहूदी ने कहा, अच्छा, अब जब तुम मक्का वापस जाओ तो बनु ज़ोहरा में निकाह कर लेना। जब अब्दुल मुतलिब मक्का वापस आए तो उन्होंने बनु ज़ोहरा की हाला नामी औरत से शादी कर ली, जिससे हजरत हमजा पैदा हुए। फिर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी बनु ज़ोहरा के सरदार वहाब बिन मनाफ की बेटी आमना बिनते वहाब से कर दी और इसी घर में नबी करीम की विलादत हुई। यहाँ से अब्दुल्ला और आमना की शादी के बाद हम सीरत नबी के मरहले में बाकायदा तौर पर दाखिल हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।